मिनट से हम खुदा की आवाज़ को सुने। आप सबकी तालीम में खुदा के फादर को सामने दावत देते हैं। अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुझे बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, माँ मरियम से पैदा हुआ, पोंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, इस दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतअल बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, यहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाज़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवन में और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। थोड़े थोड़े आगे हो गए, आपके आगे जगह है। जब मैसेज शुरू हो जाता है फिर लोग जब आते हैं बाद में तो उनके बैठने के लिए फिर सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। बराए मेहरबानी संजीदगी से हालेलुया। हाँ जी, करें मैसेज शुरू बड़ी संजीदगी के साथ। की आवाज कम करो, प्री की आवाज कम करो। स्वाए जिंदा खुदाम में से आज देखेंगे। याद है पिछले संडे हम कहाँ पे पहुंचे थे? हाँ जी, 6 बाब, यशवा 6 बाब। आज हम इसके 7 बाब को देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जब यरू की दीवार गिर गई, यरू शहर को फतह कर लिया गया, लेकिन उस वक्त खुदा साथ साथ था, खुदा हर काम कर रहा था। वैसे ही आज खुदा हमारी जिंदगियों में काम कर रहा होता है। हमारी जिंदगी में जो यरू की दीवारें हैं, खुदा उनको गिराने की ताकत रखता है। वो हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है और उससे हम यरू की दीवारों को क्या करते हैं? मार गिराते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन कब, कैसे गिराई थी उन्होंने दीवार? हाँ जी, क्या किया उन्होंने? हाँ जी, 7 बार उन्होंने यरू की दीवार के इर्द चक्कर लगाए। 6 बार लगाए, फिर 7वीं बार जब चक्कर लगाया तो खुदा ने उनको हुक्म किया था कि जब 7वीं बार चक्कर लगाओगे उस वक्त क्या करना? नरसिंगे फूके जाए और ललकारना।
اکثر جب یہاں پہ کہا جاتا ہاللویا کا نعرہ لگائیں بہتے لوگ کی شرمائی جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس طرح یرو کی دیوار گرا سکتے ہیں؟ نہیں گرے گی. آپ ابلیس سے نہیں لڑ سکتے. کبھی آپ آزما کے دیکھیں اگر کوئی ابلیس کی تصویر حاضر ہو جائے اور آپ سب مل کر ایک زوردار نعرہ لگائیں گے ہاللویا کا تو دیکھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے. اس کی جان نکل جاتی ہے. لیکن جب نعرہ ہی لگانا، جب خدا کو یاد ہی نہیں کرنا، اس کی تعریف نہیں کرنی تو پھر کیسے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. آئیں ذرا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. 7 باب کو دیکھتے ہیں. 7 باب کی پہلی آیت سے 5 آیت تک پڑھ دے ذرا. لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی. اب کیا ہے، خدا نے حکم دیا تھا کہ جو چیزیں مخصوص ہیں ان میں کیا کرنا، ان کا خیانت نہ کرنا. جو میں نے کہہ دیا کہ میرے لیے رکھنی ہے وہ کیا کرنا، میرے لیے رکھنا. آج ہم خدا کے لیے جب کوئی چیز رکھتے ہیں تو منت مانگتے ہیں تو اس کو ہم پورا نہیں کرتے. اسی لیے ہمارے گھر سے مشکلیں پریشانیاں نہیں جاتی کیونکہ خدا کا وفادار نہیں ہے. یہاں دیکھتے خدا نے پہلے سے ان کو کہا تھا کہ یرو کو جب تم لے لو گے تو وہاں کی ہر چیز کو کیا کر دینا، جلا دینا. کسی چیز کو نہیں رکھنا سوائے سونا، چاندی، پیتل. یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے لیے مخصوص کرنی ہے، یہ میرے لیے رکھنی ہے. لیکن کیا ہوا، وہاں پر بھی بے ایمانی آ گئی. وہاں پر بھی آج ہم بھی کئی بار کہتے ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے میں کسی میٹنگ میں تھا تو ایک بھائی غیر مسیحی تھا اور ہم 3 پاسٹر بیٹھے تھے. بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، غیر مسیحی کی کیا کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں، وہ سخاوت کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں تاکہ ان کی بلائیں ٹال جائیں اور ان کو ان کا حساب مل جائے. لیکن ہم کیا کرتے، ہم خدا سے سودے بازی کرتے. خداوند اے دمے گا تو پھر تو انہوں دیاں گے. خداوند تو میری تنخواہ بڑھا دے تو پھر میں تینوں وہ تو حصہ دیاں گا. ہم خدا سے سودے بازی کرتے ہیں. ہم خدا کو یہ نہیں کہتے کہ ہم دینے لگے خدا بغیر کسی لالچ کے، اور جب بغیر کسی لالچ کے تو پھر خدا دیتا ہے. لیکن جب سودے بازی ہے تو سودے بازی ہے نا. پھر خدا دیتا ہے کہ اندر لگا رہے. پھر ہم ساری عمر اسی چیز میں زندگی گزار دیتے ہیں. ہمیں دینا نہیں آتا، ہمیں خدا سے کام لینا نہیں آتا. ہم نہیں جانتے کہ خدا کیسے ہمارے ساتھ کام کرے گا. جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو وہ بھائی ہمارے ساتھ بحث میں پڑ گیا. اس نے کہا شاید ہمیں کچھ کہہ رہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو سمجھ نہیں آئی، جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جب دیتے ہیں تو آپ بغیر کسی لالچ کے دے دیتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ سودے بازی کرتے ہیں. خدا سے کہتے ہیں خداوند تو مینوں ایت کی چلو کھیتی ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں خدا میرے کھیت اتنی بڑی فصل ہوئے گی تو پھر تینوں بھی دیاں گا. کیا ہے، سودے بازی ہے نا. ہم سودے بازی کرتے ہیں، ہم سودے بازی کرتے ہیں. لیکن خدا کو سودے بازی پسند نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا کیونکہ ہم اس کو کچھ دے ہی نہیں سکتے. وہ صرف اور صرف ہماری عبادت کا بھوکا ہے. وہ چاہتا ہے ہم وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس کے گھر میں آئیں، اس کے ساتھ وفاداری دکھائیں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کی عبادت کریں، ہم کو سنا کریں، اپنے ہونٹوں کا فدیہ دیں. خدا ہم سے یہ چاہتا ہے. اور آپ کر کے دیکھیں. جب ہم خروج کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو خروج کی کتاب میں کیا لکھا ہے، 23 باب میں 23 باب 25 آیت میں کیا لکھا ہے، تو میری کیا کر عبادت کر. کیا کہتا ہے، تو میری، تو میرے ساتھ سودے بازی کر نہیں. وہ کہتا ہے تو میری عبادت کر تو میں تیرے روٹی پانی پر کیا کروں گا، برکت دے دوں گا. وہ تو عبادت کرتا، عبادت کر اور میں تیری روٹی پر برکت دوں گا، عمر کی درازی بھی کروں گا، میں تیرے گھر میں سے بیماریوں کو بھی ختم کروں گا. خدا تو اتنی برکتیں دیتا ہے. لیکن ایک عبادت ہم کروانے کے روادار نہیں ہے. احسان ہوتا ہے پاسٹر پر، خدا پر جب ہم عبادت کرواتے ہیں. نہیں جی نہیں، عبادت آ گئی تھی، ہیلے وسیلے کسی نہ کسی سے ٹالی جائے تو اچھا ہے. خدا کہتا ہے تو میری عبادت کر تو میں تیری روٹی اور پانی پر کیا کروں گا، برکت دوں گا. میں تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو بھی دور کر دوں گا. آج نہ تو ہماری بیماریاں ختم ہوتی ہیں، نہ ہمارے گھر سے ہمارے روٹی پانی پر برکت ہے. تھوڑا کماتے ہیں لیکن کیا ہے، برکت نہیں ہے.
अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, ऐसा भाई नहीं आता रहा मामिया, मैं ऐसे ऐसी फैमिलियों को जानता हूँ जिनके घरों में लाख लाख 1.5 लाख रुपया आता है, लेकिन फिर भी लालच, और फिर भी वो भूखे ही रहते हैं। फिर भी क्या है, कोई हालत नहीं है उनकी, लेकिन खुदा कहता है तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरी रोटी और पानी पर है। तो यहाँ पे खुदा ने कहा जो चीजें मखसूस की गई हैं उनमें से कुछ नहीं लेना तुमने, लेकिन क्या हुआ, पढ़े जरा। क्योंकि अकन बिन करनी बिन जब्ती बिन ज़ारा ने जो यहूदा के कबीले का था उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया। चीजें उसने ले ली। हाँ जी। सो खुदावंद का कहर बनी इस्राएल पर भड़का। अब गलती किसकी थी, किसकी गलती थी? एक बंदे की, एक गलती थी एक बंदे की ना, लेकिन कहर किस पर भड़का? पूरी कौम पर, पूरी कौम पर। आज कई बार हम ये चीजें सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जिसका गुनाह खुदा उसको सुला देता है। आज का कानून यही है, जो जान गुनाह करेगी सो वो मरेगी, वो सजा पाएगी। लेकिन पहले कानून फर्क था। जाने पूरी कौम के लिए क्या कर दी, मुसीबत छड़ी जाती। पढ़ दे जरा। और यशवा ने यहू से आई को जो बैतेल की मशरकी सिमत में बैतयामत के करीब वाक़या है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त क्या करे, जाकर क्या करो, मुल्क का हाल दरियाफ्त करो। कैसे लोग रहते वहां पे, जाकर चेक करो। अब ये यरदन के पार की बात है। अब वो बड़ी तसल्ली से बैठे थे, जब उन्होंने यरीको फतह कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो किसी को खातर भी नहीं ला रहे थे। ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि हमने इतने बड़े शहर को ऐसे ही गिरा लिया, हमने ऐसे इसको पता कर लिया, भेजा कि जाओ देख के आओ जरा वो लोग कैसे हैं, आज हम इन पर भी चढ़ाई करेंगे। और वो लोग गए और जाके क्या खबर लेके आते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस देखें कैसा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ इनका जी। उन लोगों ने जाकर आई का हाल दरियाफ्त किया। हाँ जी। और वो यशवा के पास लौटे, वो यशवा के पास वापस आए और उसने कहा सब लोग ना जाएं। वो देखिए सारे लोग जान की लोड़ ही कोई नहीं। वो तो 30,000 3,000 लोग भेज दे, कितने भेजो पढ़े जरा। फकत 2-3 हजार मर्द 2 या 3,000 रुपया मर्द भेज, बाकी सारे इतने बैठे, तो कोई मसला ही नहीं है। वो समझ रहे थे कि जैसे हमने यरू को फतह कर लिया है, हम ई को भी क्या कर लेंगे, फतह कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़े से लोग हैं। वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। कई बार हम भी अगर कोई ऐसा काम कर रहे, एक बार दुआ किसी पे करें तो उसका अगर वो उसको ठीक हो जाए या किसी की बदबू निकल जाए तो असं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो ऐसे कर लांगे, हम कर लेंगे, फिर हमें ये आ जाता है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, खता खाते हैं, फिर मुश्किल में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, क्योंकि यही हाल वहां पे हम देख रहे हैं। क्या कहा, 2 या 3,000 बंदे जाने चाहिए। पढ़े जरा। और एक को मार ले। हाँ जी। सब लोगों ने वहां जाने की तकलीफ ना दी। सारे लोगों को जाने की तकलीफ ना देगी। सारे केड़ी तकलीफ है, कई बार आप भी कहते ना मैं कला ही बड़ा है, मैं कला ही कर लांगा, सारे में जान की लोड़ ही है, सारे क्यों लड़ेंगे, मैं कला ही कर लूंगा। यहाँ पर भी यही हाल आप देखने लिखा है। उन्होंने कहा सिर्फ 2 या 3,000 लोग ले, बाकी को रहने दे, इनको तकलीफ ना दे, हम जाके उसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। लेकिन क्या हुआ, पढ़े जरा। क्योंकि वो थोड़े से हैं। हाँ जी। चुनाचे लोगों में से 3,000 मर्द के करीब वहां चढ़ गए और एक के लोगों के सामने से भाग गए। और एक क्या हुआ, भाग गए। अक्सर फतह जब पाई जाती है उसके बाद शिकस्त भी होती है। कॉन्फिडेंस ना हो, बढ़ जाए। अगर हम कहेंगे उससे मैं कारी लवांगा तो फिर हम क्या होते हैं, शिकस्त खाते हैं। यहां पर भी यही कुछ था। उन्होंने सोचा कि अब क्या है, अब तो कोई मसला ही नहीं है, हमने इतना बड़ा शहर तो कर लिया कवर, सारे शहर को हमने पकड़ लिया, सारे शहर को हमने गिरा दिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब जाएंगे 2-4 लोग, 2 या 3,000 लोग जाएंगे और जाके वो थोड़े से लोग हैं उनको क्या कर लेंगे, फतह पा लेंगे। लेकिन क्या हुआ, और थोड़े से लोगों ने क्या किया, पढ़े जरा। और एक के लोग उनमें से कोई 36 आदमी मार दिए। क्या किए उन्होंने, 36 आदमी बनी इस्राएल कौम के मार दिए, उन पर चढ़ाई कर दी उन्होंने, वो उनके पीछे भागे और ये उनके आगे से भागते हैं, दौड़ लगाते हैं, अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि यहां पे उनसे एक गलती हुई। अब वक्त क्या था, ना तो इस वक्त खुदा ने उन्हें कहा कि जाओ भी, क्योंकि जब यरू के लिए कहा तो खुदा ने कहा था जाके क्या करो,
उस शहर को फतह करो, उसके अंदर जो चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने तुम्हें दे दी है, तुमने फक्त उनके इनके चक्कर लगाना है, मेरे हुक्म को मानना है, और जब तुम चक्कर लगाओगे तो फिर 7वीं बार क्या करना, नारा लगाना, और वो जो द्वार है बड़ी वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन यहाँ ना तो इन लोगों ने दुआ की, ना खुदा से मशवरा किया, ना खुदा से पूछा, आप भी परवान बन गए खुद ही। कई बार हम भी बन जाते हैं, खुदा कुछ नहीं कहता, खुदा हमसे वो काम लेना ही नहीं चाहता, लेकिन हम कहते हैं हम कर लेंगे, कर लेंगे, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, तो उसी वक्त हम क्या करते हैं, शिकस्त खाते हैं। हमें जरूरत है सबसे पहले खुदा के पास जाएं। यहाँ हम देखते हैं खुदा से उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, खुदा ने ना उनसे कहा, ना खुदा ने कुछ बात की, ना उन्होंने दुआ की, वो तो बस अपने फखर में बढ़ गए ना उनका ईमान था, ना अमल किया किसी बात पर, क्योंकि यहाँ अमल की भी फुकदान नजर आता है, क्योंकि खुदा ने कहा था मेरी बात पर क्या करना, अमल करना, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया था। अब क्या होता है, ईद के लोग उन पर टूट पड़ते हैं, झपटते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनमें से 36 लोगों को मार देते हैं, और वो वापस आते हैं, और वापस आके यशवा को बताते हैं। पढ़े जरा क्या कहते हैं। और फाटक के सामने से लेकर शबीम तक उनको खदेड़ दिया हाँ जी। और उतार पर उनको मारा, सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए। फिर उनके दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए, परेशान हो गए। अब यशवा शिकायतें करता है खुदा से, क्या करता है, पढ़े जरा। तब यशवा और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े, अपने अपने कपड़े फाड़ दिए। हाय ये क्या हो गया, वो तो इतने बड़े शहर को हमने फतह कर लिया, ये थोड़े से लोगों ने हम पे हमारे साथ क्या किया, हमारे लोगों को भी मार दिया, हमें खदेड़ते हुए यहाँ पे आ गए, ये कैसे हो गया। और उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने सर में हाथ डाली। पड़े राजा। और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर उदे मुंह पड़े रहे, शाम तक जमीन पर उदे मुंह गिरे रहे, और क्या कहा, और अपने अपने सर पर खाक डाली। हाँ जी। और यशवा ने कहा, हाय हमारे मालिक, हमारे मालिक, खुदावंद हमको अमूरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश कराने की खातिर इस कौम को यर्दन के इस पार क्यों लाया। तू इस पार क्यों लेके आया, अगर तुम्हें यहाँ मरवाना था तो उधर ही चंगे हैं, फिर ऐसा उधर ही रहने देना। गिला है, फिर भी गिला है, फिर भी गिला है, अपनी गलती का नहीं बता, हमने गलती को, कई बार हम भी गलती कर देते हैं, लेकिन फिर भी खुदा से गिले करते हैं। खुदा ने नहीं चंगा किया, खुदा ने नहीं चंगा, खुदा चंगा है ही नहीं, है ना। क्या ख्याल है, खुदा अच्छा नहीं है, खुदा अच्छा है, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। वो हम गुनाहगारों के लिए भी हर काम करने के लिए क्या, तब बेशक हम गुनाह करें, जो मर्जी करें, लेकिन फिर भी वो हमें जान से नहीं मारता, फिर भी वो चाहता है कि हम तौबा करके वापस आ जाए। यहाँ पे हम देखते हैं, फिर कहा, हाय खुदा तूने क्या कर दिया, इससे बेहतर था कि हम उधर ही रह जाते, हम यर्दन पार आते ही ना, तूने यहाँ पे लाके हमारे साथ ये ज्यादती करवा दी है। अब क्या है, दाएं बाएं के जो लोग हैं वो भी जब सुनेंगे कई के लोगों ने, थोड़े से लोगों ने बनी इसराइल कौम को खदेड़ा है, उनको मारा है, तो ये सारे मिल जाएंगे और आकर हम पर क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। पढ़ दे दो। काश कि हम कनायत करते और यर्दन के उस पार क्या की करते, कनायत करते, या के थोड़े जी रहते, कनान पल्ले मुड़ची रह जाते थे, उथे ही सही सी, यर्दन तो पार ही बैठे रहते, थोड़ी जगह सी उथे यही रह लेते। लेकिन खुदा चाहता था कि आगे बढ़े, आज भी खुदा आपसे चाहता है कि आप बढ़े आगे, लेकिन हम जहाँ पे होते हैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, कहते पास इतना की बढ़ा, खुदा जितनी की बरकत देती है इतनी बड़ी है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते। अगर बढ़ेंगे तो खुदा आपको आगे बढ़ाएगा। गिले शिकवे हो रहे, क्या जी, बढ़े आगे जरा। और यर्दन के उस पार ही बुदबाश करते, हाँ जी। अमालिक इस्राएलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या कहूँ, क्योंकि कनानी और उस मुल्क के सब बशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे। सारे क्या करेंगे, हमको घेर लेंगे। जब वो कमजोर हो जाए तो फिर क्या करते हैं, दाएं बाएं के लोग भी कहते हैं होने कम पकड़े है ना, मान लो इन्होंने की कर लेना, क्या कर लेंगे हम। लेकिन आप खुदा क्या करता है, पढ़े आगे, और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे, हाँ जी। फिर तो अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा। और खुदावंद ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो, तो क्यों इस तरह उतर पड़ा है। खुदावंद ने यशवा से अपने पिता से कहा, उठ खड़ा हो, तो क्यों उधर मुंह गिरा हुआ है जी।
इसराइलियों ने गुनाह किया। अब खुदा ने बताया कि इसराइलियों ने क्या किया है, गुनाह किया है। आज अगर किसी को कहे ना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਦੀਏ ਬਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, वो नहीं जी नहीं है तो हो ही नहीं सकता ना। हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ खुदा उसको बताता है, यशवा को नहीं पता था, यशवा को नहीं पता था कि इसराइल में गुनाह हो चुका है और उन्होंने जो चीजें खुदा ने कही थी उनको क्या कर लिया है, चुरा लिया है। खुदा बताता है कि क्या हुआ है, गुनाह हुआ है। आगे बढ़े। और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा अब है। दुआ का वक्त नहीं है, खुदा बताता अब दुआ का वक्त नहीं है। इन्होंने मेरा अहद तोड़ा है, जो मैंने हुक्म दिया था उसको तोड़ दिया है। कई बार हम भी दुआ करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, लेकिन हमारा अमल ही अच्छा नहीं होता, इसलिए भी खुदा नहीं काम करता। ईमान बगैर ईमान के क्या है, क्या है जी, बगैर ईमान के मुर्दा है। ईमान जितना मर्जी बड़ा हो, अमल अच्छे नहीं है तो वो सारा ईमान क्या है, मुर्दे पर में चला जाता है। यहाँ पे खुदा उसको बता रहा है कि पढ़े आगे। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और यादगारी भी की और अपने असबाब में से उसे मिला भी दिया। हाँ जी, इसलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते। अब क्या है, ये नहीं ठहर सकते, अब ये अपने दुश्मनों के आगे नहीं ठहर सकते। अब वो बात गई, क्योंकि अब मैं भी तुमसे जुदा होने वाला। क्या लिखा है, खुदा ने क्या कहा, वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं हाँ जी, क्योंकि वो मलाउन हो गए हैं। क्यों, अब वो क्या हो गए हैं, मलाऊन हो गए। कई बार हम भी कई बार ऐसे गुनाह कर देते हैं जिससे हम भी मलाऊन हो जाते हैं। ये पढ़े आगे। मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। खुदा क्या कहता है, कैसे अफसोस की बात है अगर आज खुदा हमें भी कहे कि तुमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अफसोस की बात होती है। मैं बड़े बड़े आदमों को भी जानता हूँ जो ऐसी गलतियां कर देते हैं, ऐसे गुनाह कर देते हैं। मैं बड़े, आपको पता मेरी खिदमत कैसी है। एक पास्टर के पास हम गए, बहुत हो गए। जब मैं उनके साथ मिला तो उनकी आंखें नहीं काम कर रही थी, नजर नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा बीमार थे। तो बात क्या हुई, उसके घर वालों ने कहा कि ये बदरुए निकालते थे, बदरुओं ने इन पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। कोई ना कोई तो क्या हो, खुदा के लोगों पर बदरू अटैक नहीं कर सकते अगर आपके अंदर गुनाह नहीं है। अगर आपके अंदर गुनाह आ जाएगा तो फिर बदरू आप पर अटैक कर सकती है। खुदा ने कहा अब मैं तुम्हारे अंदर नहीं रहने वाला, मैं जुदा होने वाला, मैं जा रहा हूँ। अब तुम अकेले रहोगे, लग पता जाएगा जब मैं चले जाऊंगा। तो फिर क्या बाजी पड़े, जब तक तुम मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से नेस्त ना कर दो। जब तक तुम मखसूस हुई चीज को अपने दरमियान से खत्म नहीं करोगे, जब तक वो चोर जिसने ये चोरी की, जिसने ये गुनाह किया, जब तक तुम उनको नहीं पकड़ोगे उतनी देर तक मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा। हाँ जी पढ़े। उठ लोगों को पाक कर हाँ जी, और कह कि तुम अपने को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ऐ इसराइलियों, तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज मौजूद है। तुम अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते जब तक तुम उस मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से दूर ना कर दो। इसी तरह जब तक हमारी जिंदगी में गुनाह होता है तो हम अपने दुश्मनों के सामने टिके। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अब्लीस। जब तक हमारी जिंदगी में गुनाह है हम अब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। पढ़ेगी आगे। सो तुम कल सुबह को अपने अपने कबीला के मुताबिक हाजिर किए जाओगे और जिस कबीला को खुदा पकड़े वो एक एक खानदान करके पास आए। अब खुदा अपने बंदा को मशवरा देता है, खुदा बताता है कि तुमने अब पकड़ना कैसे, इतने बड़े लोगों से कैसे पकड़ना। अब खुदा बताता है कि सबसे पहले तुमने क्या करना है, एक एक कबीला, 12 कबीले हैं, एक एक कबीला जो है वो सामने आएगा। और जब एक एक कबीला पकड़ा जाएगा तो उसके बाद क्या करना, एक खानदान ले आना। और जब खानदान पकड़ा जाएगा तो फिर एक फर्द लेके आना। और जब फर्द पकड़ा जाएगा तो समझ जाना कि ये फैमिली जो है ये गुनाहगार है। पढ़े जरा।
اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے، اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے۔ تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا جائے، وہ اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلایا جائے۔ جو کچھ اس کا ہو وہ سارا کا سارا آگ میں جلایا جائے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ یرو کو تم نے کیا کرنا ہے؟ آگ لگا دینی، آگ سے جلانا ہے۔ اور یہاں پہ خدا کہتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا، جو پکڑا جائے گا، اس کو بھی کیا کر دینا؟ آگ سے جلا دینا۔ جی پڑھیں آگے۔ اس لیے کہ اس نے خداوند کے عہد کو توڑ ڈالا، بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا۔ پس یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا۔ جی آگے۔ پھر وہ یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا اور زارا کا خاندان پکڑا گیا۔ جی پھر وہ زارا کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لایا اور زبدی پکڑا گیا۔ پھر وہ اس کے گھرانہ کے ایک ایک مرد کو نزدیک لایا اور اکر بن کرمی بن زبدی بن زارا جو یہودا کے قبیلے کا کیا تھا پکڑا گیا؟ اور پکڑا گیا، پکڑا گیا، وہ پکڑا گیا۔ اور جب اس سے بات چیت کی، پڑھیں آگے کیا ہوا پھر؟ تب یشوع نے اکن سے کہا کہ اے میرے فرزند میں تیری منت کرتا اے ہوں۔ میرے فرزند، پھر بھی اس نے کیا کہا؟ میں تیری منت کرتا ہوں۔ تو نے کیا کیا بتا دے، سچ بتا دے، یہ نہیں کرندا ماردا ہوئے جھندا ہوئے نہیں۔ اس نے کہا بتا میرے فرزند، میرے بیٹے، تو نے کیا کیا ہے؟ آج پڑھیں۔ کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر، اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے، اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے، اور مجھ سے مت چھپا۔ ہاں جی۔ اور اکن نے یشوع کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے، اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر اس کو لے لیا۔ میرے اندر لالچ آ گیا، میرے اندر لالچ آ گیا، میرے اندر گناہ آ گیا، تو میں نے کیا کر لی؟ وہ لا کے اپنے ڈیرے میں چھپا دی، اپنے خیمے میں چھپا دی۔ آج پڑھے ایک حوالہ پڑھتے ہیں ذرا۔ لالچ، گناہ کیا کرتا ہے؟ یعقوب کا خط پہلا باب اس کی 14-15 268 نمبر پیج ہے، 268 نمبر پیج ہے۔ یعقوب پہلا باب 14 اور 15 کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی خواہش تھی۔ خواہش آ گئی نا، کوئی سونے کی اینٹ بھی پڑی، کیونکہ وہاں پہ اینٹ کا لکھا ہے، ذکر ہے کہ وہاں سونے کی ایک اینٹ بھی پڑی تھی، چاندی بھی پڑی تھی، سونا بھی پڑا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ چپکے سے چھپا لیا، لالچ آ گیا۔ آج پڑھے۔ ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں، ہاں ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر کھینچ آزمائش کر کرتا اور ہے۔ پھنس کر کیا ہے؟ آزمایا جاتا ہے۔ یہ آزمائش تھی بنی اسرائیل قوم کی، اس وقت پوری قوم کی آزمائش تھی کہ خدا نے کیا کہا کہ وہاں سے تم نے کچھ بھی نہیں لینا بلکہ اس کو جلا دینا ہے، لیکن سونا چاندی جو بھی چیزیں پیتل کی ہوگی یہ میرے لیے رکھنی ہے۔ خدا نے اپنا حصہ مانگا، کیونکہ خدا نے کیا کیا تھا؟ وہ شہر تباہ کیا تھا۔ وہ تو ویسے محض اس کو ایک وسیلہ بنایا تھا، لیکن سارا کام کرنے والا خدا تھا۔ اگر آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، خدا میرے وسیلہ سے کام کرتا ہے، بدروئیں نکالتا ہے، بیمار اچھے ہوتے ہیں، تو میں محض ایک وسیلہ ہوں۔ پیچھے کام کس کا ہے؟ خدا کا۔ اگر میں کر لاں گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پیار کرنے والا ہے، خدا محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں، موسیٰ سے خدا نے کیسی محبت کی۔ خدا نے کہا موسیٰ پہاڑ پہ آ جا، میں وہاں پہ آؤں گا اور میں کیا کروں گا؟ تجھے 10 حکم لکھ کے دوں گا۔ موسیٰ نیچے سے اوپر گیا اور خدا ہوتے بیٹھا رہا۔ خدا بھی آسمان سے نیچے آیا ملنے کے لیے، خدا نے بھی سفر کیا۔ بے شک خدا تو ایک دم سے آ سکتا ہے نا، ایک دم سے کر سکتا ہے۔ اس کی حضوری یہاں پر بھی ہے، اس کی حضوری باہر بھی ہے، اس کی حضوری ہر جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو کہتا تو پہاڑ پہ آ جا اور میں بھی اس سے تیرے ساتھ وہاں پہ ملاقات کروں گا، میں بھی وہاں پہ آؤں گا۔ وہ پیار سے بھرا ہوا ہے۔ آج جب وہ ہمیں بلاتا ہے چرچ میں تو سمجھ جائیں کہ جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو وہ بھی چرچز میں اتر آتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔
देखा है ख्वाहिश क्या करती है, बड़े दराज से इसको, फिर ख्वाहिश हामला होकर फिर गुनाह को ख्वाहिश जो जन्म देती हामला है। होती है और फिर गुनाह को जन्म देती है। और गुनाह जब बढ़ चुका तो वो जब पैदा गुनाह होता है। बढ़ चुका होता है तो फिर क्या होता है, वो मौत को पैदा करता है, वहां मौत पैदा होगी। उसने गुनाह किया, उसने सोना चांदी छुपाए और गुनाह ने जन्म लिया, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, फिर गुनाह ने जन्म लिया, फिर मौत पैदा हुई। पढ़े जरा, वापस आ जाए, वापस आ और जाए। देखो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई हाँ जी। है और चांदी उनके नीचे है। और यशवा ने कासिम भेजे और उस डेरे को तोड़ेंगे और क्या देखा कि वो उसके डेरे में छुपाई हुई है और चांदी उनके नीचे है। और उनको डेरे में से निकाल कर यशवा और सब बनी इसराइल के पास लाए और उनको खुदावंद के हुजूर रख दिया। तब यशवा और सब इसराइलियों ने जारा के बेटे अकन को और उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों और डेरे को और जो कुछ उसका था सबको लिया और वादिया कूर में उनको ले गए। और क्या यशवा किया? हाँ जी, पढ़ते जाए। ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया, तुमने हमें क्यों दुख दिया? खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। आज के दिन खुदा तुझे क्या करेगा, दुख देगा, क्योंकि तेरी वजह से 36 आदमी जो हैं वो मर गए और हम पस्त हुए, वहां पे हावी हुए और खुदा हमसे नाराज होके चला गया। एक बंदे की सजा आप देखें क्या होने वाला है, पढ़े जरा। तब सब इसराइलियों ने उसे संसार किया और उन्होंने उनको आग में जलाया और उनको पत्थरों से मारा और उन्होंने उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसके माल को, जो भी माल मवेशी थे सबको बियाबान में जाके क्या कर दिया, खड़ा किया और सबने पत्थर मार मार कर उनको संसार किया और उसके बाद उनको आग लगा दी। यहां देखते हैं एक बंदे की सजा कितनी बड़ी है। आज जब हमारे घरों में भी ये काम होता है, अक्सर करो ना, अक्सर मैं बात करता हूं कि ताड़े घर च दीवे बले सी, खुदा जब मुझे बताता मैं बताता हूं वो नहीं मेरा दादा पालता रहा है। फैमिली कहां है? यहां फैमिली आ गई ना, पूरी फैमिली, एक फैमिली के फर्द ने गुनाह किया और सारी फैमिली को क्या की, असियत मिली, सबको सजा मिली। आज भी ऐसा ही होता है, जब हमारे घर से एक बंदा कोई गलत काम कर रहा होता है तो पूरी फैमिली उसमें फंसी होती है, शामिल होती है और हम कहते हो चाचा करता जी मैं की करा, चाचे ना वो लात तलकी कर लो, वो चक्कर उसके छोड़ दे उसको। अगर आप तलक रखेंगे तो यकीन जाने आपका भाई हो, आपकी बहन हो, अगर वो जादूगरी करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जो करना खुदा की नजर में अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब है हम भी उनके गुनाह में क्या हो जाते हैं, शरीक हो जाते हैं, फिर सजा भी मिलती है। गाय बिगाय बच्चा बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन नहीं नहीं मैं, फिर भी हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं, वो मेरा फलाना जी करता है, मैं तो कभी कीता ही नहीं। फैमिली को देखे, यहाँ एक फैमिली के मेंबर ने गुनाह किया, सजा किसको मिली है, पूरी फैमिली को, पूरी चीजों को उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया, मारा और फिर उनको क्या कर दिया, जला दिया। और ये सजा छोटी सजा है, छोटी है, बहुत बड़ी सजा है। आइए का हवाला देखते हैं जरा, इस्तिश्ना 7 बाब उसकी 26 आयत को पढ़ देते। हमारे ख्याल में ये सजा सख्त सजा है, सख्त सजा है, लेकिन आज भी, आज अक्सर आप देखें आपका बेटा या बेटी कोई गलती करती है तो जब सारी फैमिली फंस जाती है, मुश्किल में पड़ते नहीं पड़ते, पड़ जाते हैं ना। यही कुछ होता है, अगर हमारा कोई अपना कोई ऐसी गलती करे, गुनाह करे, तो इसका मतलब है कि इसकी सजा भुगतने के लिए सारी फैमिली को तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए कोशिश करें कि हमारे घरों में ये काम हो ही ना। पढ़ दे जरा 7 बाब की 26। तो ऐसी मकरू चीज अपने घर में ला कर, यहाँ पर भी खुदा कहता है तुम आप ऐसी कोई मकरू चीज लाके अपने घर में उसकी तरह नेक कर दिया जाने के लायक ना बन जाना, बल्कि तो उससे घिन खाना और उससे उसके क्या बिल्कुल करा, नफरत घिन करना। खाना। जो भी ऐसी चीज है जो तुझे मकरूह करती है, जो तुझे गुनाहगार ठहराती है, उससे क्या करना, घिन खाना। घिन का मतलब है नफरत करना। आज हमें भी गुनाह से नफरत करने की जरूरत है। अगर आपका कोई बेटी, बेटा, कोई भाई, बहन, कोई भी ऐसी गलती करता है तो आप उससे घिन खाएं,
उससे नफरत करे ताकि उसको एहसास हो, तो शायद वो अपनी जिंदगी को भी चेंज कर लेगी। हाथ लाना नहीं हो, मैंने बोला पहला तो बड़ा प्यार करता सी। उसको सिखाने का तरीका क्या है? यही है कि आप उससे थोड़ा पीछे हटे तो फिर देखें उसको एहसास होगा कि ये मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरी माँ मुझसे पीछे क्यों हो रहे? अगर पीछे हो रहे तो इसकी कोई ना कोई वजह है। इसलिए आज हमें जो है हम चीजों को देखें। हम इन्हीं दो हवालों में देखते हैं राहब कस्बी ने क्या किया। उसने 2 जासूसों को जगह दी और उसने अपनी पूरी फैमिली को बचा ले, पूरी फैमिली बचा दी गई। आज भी अगर आप रास्तबाज हैं तो आप खुदा के साथ चलते हैं तो आप अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। वैसे ही अकन को देखते हैं कि उसने एक गलती की और अपने सारे घराने के लिए मौत को चुन लिया। सारी फैमिली क्या है? मौत के घाट उतार दी गई। आज जरूरत है, हमें फैसला करने की जरूरत है कि हम राहब कस्बी की तरह पढ़ना चाहते हैं या अकन की तरह पढ़ना चाहते हैं। अगर राहब की तरह पढ़ना चाहते हैं तो हमें खुदा की वफादारी दिखाने की जरूरत है। आइए खुदा इस कलाम को इस तरह से इसका मन करते हैं। आइए अपने सर कुछ करेंगे, दुआ करेंगे, बस दुआ करेंगे।